آپ کو پتا ہے کہ ونٹر جو ہے، سردیاں وہ ختم ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ ہم گرمی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس وقت بہار کا موسم ہے۔ تو سردیوں کے سوتے میں جو آلمنڈ ٹری ہے، بادام کا درخت ہے، وہ جاگتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے اور جیسے ہی سردی اپنا دم توڑ رہی ہوتی ہے، سردی سو رہی ہوتی ہے، بادام کا درخت جاگنا شروع کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ابھی بہار آتے ہی یہ پہلا درخت ہم دیکھتے ہیں جو پھولوں سے، خوبصورت پھولوں سے بھرا ہوا، وہ جاگ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند کا روح مجھے ابھار رہا تھا کہ اس کے خوبصورت پھولوں کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ ابھی سردی ہے، ونٹر ہے، اور یہ کس طرح سے اگا ہے، اس نے اپنی آنکھ کھول دی ہے۔ اور پھر میری توجہ خداوند نے اس درخت کی طرف دلائی، اور میرے عزیزو، خدا نے ایک خوبصورت پیغام مجھے اسی درخت میں سے دیا ہے جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میرا ایمان ہے کہ یہ پیغام آپ کو بلیس کرے گا، یہ پیغام آپ کو امید دے گا، نئی تازگی دے گا، نئی شروعات دے گا، کیونکہ یہ پودا بھی ایک نئی شروعات لے کر آتا ہے۔ یہ ونٹر کی سردی کو ختم کر کے یہ ہمارے لیے سمر کی وارمتھ لے کر آتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہار کی شروعات لے کر آتا ہے۔ سمجھیں، بادام کا درخت ایک پہلا پھل ہوتا ہے جو بہار آتے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور خدا بھی کہتا ہے کہ ہم پہلا پھل بنے، جیسے یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل تھا۔ خدا بھی یہی چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا جو لوگ آخر میں آتے ہیں، خدا نہیں پسند کرتا جو لوگ بڑے سلو ہوتے ہیں۔ خدا ایسے درخت کو پیدا کرتا ہے تاکہ وہ سلو لوگوں کی، جو لیٹ آتے ہیں، جو آخر میں آتے ہیں، جو لڑکھڑا کر آتے ہیں، خدا ان کے لیے ایک پیغام دیتا ہے اس پیڑ کے دوارا کہ ہمیں فرسٹ بننا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس پیڑ کا جو پھل ہے اسے بادام کہتے ہیں، اور بادام کی شکل جو ہے وہ آنکھ کے سائز کی ہے اور آنکھ کی طرح ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے بعض لوگوں کی آنکھیں بھی بادامی ہوتی ہیں، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تو یہ خدا ہر ایک چیز کا پلان کرتا ہے۔ اس کا سائز اگر آپ میری آنکھ کے ساتھ دیکھیں تو تقریباً جیسے میری آنکھ کا سائز ہے، بادام کا سائز اتنا ہوتا ہے۔ یہ ایوریج ایج ہے، کسی کی آنکھیں موٹی بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہماری بیٹی پوجا کی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ایوریج سائز ہے وہ بادام کا ہماری آنکھوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ چاہے دنیا نہ دیکھے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ ابھی سب سو رہے ہیں باقی درخت، لیکن خدا نے اس کو جگایا ہے کہ جاگ اور دیکھ۔ تو میرے عزیزو، اس پیغام نے، اس درخت نے، جب میں نے اس پہ اسٹڈی شروع کی، خدا نے بہت کچھ مجھے دیا۔ میں آج کی اسٹڈی سے خود سیر و رسودہ ہوا۔ یہ چاہے منہ بول رہا ہے جو میرا ہی منہ ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ یہ پیغام صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، میری ذات کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آپ کے لیے۔ اور جو کچھ آپ سیکھتے ہیں، میری ذات بھی وہ سب کچھ سیکھتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آج ہم اس پیغام میں سے بہت کچھ سیکھیں گے، کیونکہ جو قدرت ہے، جو نیچر ہے، یہ خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے۔ زبور 19 اس کی پہلی اور دوسری آیت میں لکھا ہے،
آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ ہاللیلویہ! یہ خدا کی نیچر جو بادام کے درخت کے ذریعے سے ہے، یہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے۔ اور میرا ایمان ہے آج کے بعد جب کبھی بھی آپ بادام کے درخت کو پھوٹتا کھلتا اپنی آنکھیں کھولتا ہوا آپ دیکھیں گے تو آپ اس کلام کو جو آج آپ سننے والے ہیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین۔ آئے ہم دعا کریں تاکہ خدا کا کلام ہمیں تیار کرے۔ ہم سب خدا کے کلام کو پکڑ کر کہیں گے، خداوند یہ تیرا کلام ہے اور میں اسے اپنے دل میں رکھتا ہوں۔ خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور خداوند آج میں تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو سیکھ پاؤں، اس بادام کے درخت کے ذریعے سے سیکھ پاؤں، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین۔ آپ سب میرے ساتھ نکالیے یرمیہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب، اور ہم اس کی 11ویں اور 12ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پھر یہووا دا بچن میرے کول آیا کہ یرمیہ تو کی ویکھدا ہے؟ میں آکھیا میں بادام دے برچ دا ایک ڈنڈا ویکھدا ہاں۔ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। آمین آمین۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ یرمیہ پہلا باب 11ویں اور 12ویں آیت میں لکھا ہے پھر خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ میرے عزیزو، جو یرمیہ نبی تھا یہ خداوند کا بڑا زوردار پاورفل نبی تھا، اور یہ تب آیا جب بنی اسرائیل اسیری میں جانے والے تھے۔ آپ نے یوسیہ بادشاہ کے بارے میں سنا ہوگا، یہ اس کے دور کے 13ویں سال میں اس نے اپنی خدمت کو شروع کیا، اور صدقیہ بادشاہ جو کہ اسیری سے غلامی میں جانے سے پہلے آخری بادشاہ تھی جس کی نبوکت نظر نے آنکھیں نکال دی تھیں، یہ اس دور کے درمیان میں رہا، اور جب وہ اسیری میں چلے گئے تب تک بھی یرمیہ نبی لوگوں کو پیغام دیتا رہا، اور وہ لوگوں کو یہی کہتا تھا جاگو، سو نہیں، اٹھو اور خداوند کے بڑے کاموں کو دیکھو، کیونکہ خدا اپنے کلام کو پورا کر کے رہے گا۔ یہ اس کا پیغام تھا۔ اور جب خدا نے یرمیہ کو بلایا تو یرمیہ کو کہتا ہے کہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے تجھے دیکھا اور میں نے تجھے چنا اور میں نے تجھے ایک نبی مقرر کر دیا ہے۔ اور یرمیہ بھی ہماری طرح تھا۔ یرمیہ کہنے لگا خداوند میں ابھی بچہ ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں کلام نہیں سنا سکتا۔ تو خداوند نے کہا یہ نہ کہہ کہ تو بچہ ہے، اور خداوند نے اس کی زبان کو چھوا، اس کے منہ کو چھوا اور کہا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا ہے، جا اور لوگوں کو تعلیم دے۔ اس کو ہم پھر سے پڑھیں گے۔ خداوند کہتا ہے پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ خدا اسے کہتا ہے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اور یرمیہ کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں۔ پنجابی میں کیا لکھا ہے؟ ایک ڈنڈا دیکھتا ہوں۔ اور ڈنڈا جو ہے، اگر آپ نے لفظ تیری سوٹی تیری لاٹھی
کا अगर आपने लफ्ज सुना है तो ये वही है, तेरी सोटी तेरी लाठी मुझे संभालेगी। और खुदा उसे यही दिखा रहा है, एक असा दिखा रहा है, एक रॉड दिखा रहा है, एक स्टाफ दिखा रहा है, और कहता है यिर्मयाह तू क्या देखता है? और वो इब्रानी में कहता है मैं शाकेड देखता हूं। और शाकेड के दो मतलब होते हैं, ये थोड़ा एक्सेंट का फर्क है। शाकेड का मतलब बादाम के दरख्त की शाख होती है, और दूसरा इसका मतलब ये होता है देखना, गौर करना, चुकन्ने होना, इसका ये मतलब है। इस दरख्त का नाम ही, मतलब ही इब्रानी जुबान में देखना है, गौर करना है, चुकन्ने रहना है, चौकस रहना है। हम क्या गीत गा रहे थे? नाल चौकसी पैर रखा जद तेरे का रामा में। और सच माने, मैं इस चर्च का पास्टर होते हुए बड़ा दुखी होता हूं जब आप आखिरी टाइम पर आते हैं। हालांकि इतना भी जरूरी घर में काम नहीं होते, कभी कभी हम बस एम ही लेजी होते रहते हैं। और देखें, मेरा दिल दुखी होता है क्योंकि मैं बार बार कहना भी नहीं चाहता आप लोगों को कि यार जल्दी आओ, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। लेकिन आज का ये दरख्त हमें बताएगा कि इससे पहले कि बाकी पेड़ पौधे उगे, ये ऑलरेडी फला हुआ है, फूला हुआ है, और इसके खूबसूरत पत्ते ऐसे लग रहे हैं जैसे गुलदस्ते से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं उसे वहां पे देख रहा था और हरी हरी टाहनियों में सफेद और गुलाबी पिंक रंग बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और आज के बाद मैं आपको याद नहीं दिलाऊंगा, ये दरख्त आपको याद दिलाएगा कि हमें लेजी नहीं बनना, हमें इस दरख्त की तरह पहला फल बनना है। यीशु भी मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहला फल था। ये मेरे हाथ में आप क्या देख रहे हैं? घड़ी। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो घड़ी अब आपके पास है वो घड़ी बड़ी कीमती है। ये वक्त बड़ा कीमती है जो प्रभु ने आपको दिया है। और यही काम खुदा यहां पर यिर्मयाह को कहता है। यिर्मयाह को कहता है यिर्मयाह तू क्या देखता है? वो कहता है मैं शाकेड देखता हूं। और कहता है यिर्मयाह तूने खूब कहा, तुमने सही कहा, क्योंकि ये शाकेड, ये वक्त जो तू देख रहा है ये कीमती है। जो तू देख रहा है उसको जांच परख। तो मेरे अजीजों, यहां पर शाकेड के दो मतलब दिखाए गए हैं। इसका मतलब बादाम का दरख्त भी है और इसका मतलब देखना भी है। इसको हम कलाम कहते हैं, खुदा का कलाम। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जो कलाम आज हम सुन रहे हैं, अगर ये हमारी जिंदगियों में असर कर जाए तो फिर हमारी जिंदगियां खुदा की बादशाही में जरूर ही जाएंगी। हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शाकेड कहते हैं जो बादाम के दरख्त की शाख है, लेकिन जो आम शाख होती है, कोई भी शाख किसी भी दरख्त की हो, उसको बोलते हैं नेत्सर। क्या बोलते हैं? नेत्सर। और नेत्सर से ही लफ्ज नासरी निकला है। और इसलिए ये पैगाम आपको बहुत सी गहरी बातें आज बताएगा। और आज हम देखेंगे कि कहां कहां बाइबल में ये हमें बादाम के दरख्त की या असा की, लाठी की, नेत्सर की, हमें कहां कहां पर मिसालें और बातें मिलती हैं। और आज का कलाम हमें कुछ गहरे में लेकर जाएगा।
आप सबसे पहले आप ये देखें कि जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में से निकलते हैं, बल्कि अभी निकलते नहीं हैं, जब खुदा मूसा को बुलाता है और खुदा कहता है कि मूसा मैंने तुझे मुकर्रर किया है कि तू बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकालेगा और तू उन्हें मुल्के कनान में उस देश में लेकर जाएगा जो मैं तुझे और तेरे लोगों को देने वाला हूं। और मूसा भी यिर्मयाह की तरह यही कहता है, हमारे और आपकी तरह वो भी कमजोर थे। पता है मूसा ने क्या कहा खुदा से? खुदावंद मैं ठीक तरह से बोल नहीं सकता। यिर्मयाह की भी यही एक्सक्यूज था और मूसा भी यही कहता है, खुदावंद मैं ठीक तरह से बोल नहीं सकता। खुदावंद कहता है तुझे बनाने वाला कौन है? मैं ही हूं। किसी को मैं कमजोर बनाता हूं, किसी को जोरावर बनाता हूं। कोई फर बोलता है और कोई लड़खड़ा कर बोलता है। इसलिए तू मत डर कि तू कौन है, मैं तुझे इख्तियार दूंगा। खुदा ने कहा तेरे पास क्या है? और क्या था उसके पास? लाठी। उसके पास लाठी थी। खुदा कहता है जो तेरे पास है तू मुझे दे दे। हालेलुया। आज आपके पास जो कुछ है वो खुदा को दे दे। सच माने जो कुछ भी है। पास्टर खालिद बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं। पिछले दिनों में उन्होंने एक पैगाम दिया, अपने पैसों से खुदावंद की खिदमत करो। जिसके पास पैसा है वो पैसा खुदावंद को दे दे, ये उसकी खिदमत है। जिसके पास म्यूजिक का तोड़ा है वो अपना तोड़ा खुदावंद को दे दे। आपके पास जो कुछ भी है, गाने का तोड़ा है, आप खुदावंद को दे दें। खुदावंद आपको बरकत देगा। जिसके पास रोटी है वो अपनी रोटी दे दे, खुदा उसी को मल्टीप्लाई कर देगा। वो उस बच्चा जो था उसके पास कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां और 2 मछलियां। और जब उसने खुदावंद को दे दी तो खुदावंद ने 5000 से ज्यादा लोगों को खिला दिया। हालेलुया। और उस खुदावंद ने कहा तेरे पास क्या है? लाठी है। वो कहता ये लाठी तुम मेरे स्पुर्द कर दे। और जब उसने स्पुर्द की तो वो सांप बन गया। सांप एक ताकत का, एक दहशत का, एक रोब का साइन है। और खुदा ने कहा कि ये इख्तियार मैं तुझे देता हूं, इसकी दुम से पकड़। और जब उसने खुदावंद के कहने के मुताबिक उसकी दुम से पकड़ा तो वो उसके हाथ में लाठी बन गई। और खुदा ने कहा कि तू इसे जहां जहां मैं तुझे कहूं तू इस्तेमाल करेगा और तू इससे बड़े काम लेगा। उसने उस लाठी से बड़े बड़े काम किए। पहले उसने उसी लाठी से समंदर के 2 भाग कर दिए। हालेलुया। रास्ता जहां पर नहीं था, खुदा ने जो इख्तियार उसको दिया वहां से वो रास्ता बन गया। फिर ये चलते चलते जब ये हूर के पहाड़ पर आए, खुदा ने इनको शरीयत दी और वहां से जब निकलना था तो अदूम ने, जो आज जॉर्डन कहलाता है, उन्होंने रास्ता नहीं दिया इसराइलियों को गुजरने का। और खुदा ने फिर इन्हें समंदर के रास्ते वापस ले जाकर वहां पर इनको कहा कि वहां उस रास्ते से आओ। तो ये तंग आ गए थे। ये कहने लगे खुदावंद तू हमें कहां पर ले आया है? यहां पर ना रोटी है ना पानी है, और जो तू रोटी हमें दे रहा है उससे हमें कराहियत आती है। वो रोटी जो मन था, जो आसमान से बरसती थी, जो फरिश्तों का खाना था, वो लोग खा रहे थे और फिर भी ना शुक्रे थे। आज हम, खुदा ने इस चर्च में हर चीज रखी है, फिर भी हम में से कुछ लोग ना शुक्रे हैं। मैं सच कहता हूं, उन लम्हों को याद करें जब कोई चर्च नहीं था और हम बाहर चौकों में और खेतों में बैठकर हम खुदा की इबादत करते थे। और आज जब है
तो आज हमें कदर नहीं होती चर्च की। मैं सब लोगों को कह रहा हूं जिनके पास चर्च हैं, जिनके मोहल्ले में चर्च है और वो नहीं जाते, वो बदबख्त लोग हैं, क्योंकि खुदा मुहैया करता है और फिर भी हम कहते हैं हमें तू क्या देता है, हमें तेरा क्या फायदा है। वो खुदावंद पर इल्जाम लगाते हैं, कहते तू हमें कहां मरने के लिए ले आया। अपने खुदा के बंदा मूसा को भी वो मलामत करते हैं। और फिर खुदावंद को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है। और मेरे अजीजों, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी काम की वजह से, हमारे गलत बोलने की वजह से, हमारे गलत एक्ट की वजह से कहीं खुदा का काम रुक ना जाए, वो रफ्तार जिससे हम चल रहे हैं वो रुक ना जाए। इसलिए अपने हर कॉल और फेल और हर काम को जांच पड़ताल कर करिए। और खास तौर पर अगर हमारी बातों से, हमारे कामों से चर्च की खिदमत रुक रही है तो हम बड़े बदबख्त इंसान हैं। तो यहां पर ये लोगों ने जब खुदावंद और उसके बंदा के खिलाफ आवाज उठाई तो खुदावंद ने जहरीले सांप इनके अंदर भेज दिए। वहां पर लिखा है फायरी सरपंट भेज दिए, जलाने वाले सांप भेज दिए। ऐसा जब जहर लगता था तो उनके बदन में ऐसे जैसे आग लग गई है और लोग मरना शुरू हुए। लोग क्या हो गए? मरना शुरू हो गए। और खुदा का बंदा मूसा, खुदा उसे कहता है कि मैंने मूसा जैसा हम्बल इंसान पूरी दुनिया में नहीं देखा। वो फिर उनके लिए खुदावंद के हुजूर झुकता है और कहता है खुदावंद तेरे लोग मर रहे हैं। वो दुआ करता है और खुदा फिर कहता है तेरे हाथ में क्या है। खुदा फिर उसे कहता है बल्ली ले, यही असा ले और असे को गाड़ और उसके ऊपर पीतल का एक सांप बनाकर उसके ऊपर लगा दे। और वो फिर गाड़ता है और उसके ऊपर पीतल का एक सांप बनाकर उसके ऊपर लगा देता है। और खुदा कहता है कि अब के बाद जो भी सांप का डसा इस बल्ली पर, इस लकड़ी पर लटके सांप को देखेगा तो वो शिफा पा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ताकत किस में थी? ना इस बल्ली में थी, ना उस सांप के अंदर थी। ताकत खुदा के कलाम के अंदर थी। हालेलुया। और वो सांप को बल्ली पर लटका हुआ देखते हैं और जो देखते हैं वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। ये कनेक्शन पता है कहां पर जाता है? जब खुदा ने अपने बेटे को लकड़ी पर, सलीब पर टांग दिया, वो जो गुनाह से बेबहरा था, वो जो गुनाह को नहीं जानता था, वो खुद एक पाप बन गया हमारी खातिर। खुदा ने सारे जहान के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए और वो एक लानती मौत सलीब के ऊपर मरा। किसकी खातिर? हमारी खातिर। और खुदा ने कहा कि जो कोई उसकी तरफ देखेगा वो निजात पाएगा। वो सिर्फ सांपों से जिंदगी नहीं बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। और अब सांप उसे नहीं बल्कि वो सांपों को लताड़ेंगे, वो बिच्छुओं को लताड़ेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यही बल्ली पर खुदा ने फिर से उस सांप को चढ़ाकर लोगों की जिंदगियों को बचाया। इसके बाद खुदावंद ने हारून को खड़ा किया। खुदा ने किसको खड़ा किया? हारून को खड़ा किया। और जब वो खुदा का खादम बना, पास्टर बना, तो लोग फिर से एतराज, लोग तो फिर लोग हैं ना, वो कहने लगे ऐ कोई बहुता पास्टर नहीं है कि हारून ही बस पास्टर हो, लेवियां दी नस्ल ही सारी पास्टर हो, हम क्यों नहीं, हम भी पास्टर हो सकते हैं। और लोगों ने, बनी इस्राएल ने बगावत शुरू कर दी उनके खिलाफ।
तो खुदा ने कहा कि तू मूसा, तू हारून को भी लेकर आ, और बाकी भी जितने 12-11 कबीले हैं तो उनको भी लेके आके अपने में से एक सरदार चुन लो जो तुम्हारा पास्टर बनेगा। तो वो ले आए अपने सरदार को, और हर एक सरदार के हाथ में एक असा होता था। और कहते हैं, जूइश ट्रेडिशंस बताती हैं कि उन्होंने जो हैंडल होता था, मुट्ठी होती थी, उसके ऊपर उन्होंने एक नाम लिखा होता था, और वो नाम था यहोवा। योद है, वाव है। यहां पर अगर उस तस्वीर को आप देखें गौर से, उसकी मुट्ठी को देखें जरा, तो वहां पर एक लेटर लिखा हुआ है और उसको कहते हैं योद है, वाव है, और इसका मतलब होता है यहोवा। क्या मतलब होता है? यहोवा। और उस मुट्ठी के ऊपर यहोवा था। और जब हारून ने अपनी लाठी, और सब ने अपनी अपनी लाठियां देखी, रख दी खुदा के घर के अंदर, और अगले दिन उन्होंने जब जाकर देखा तो हारून की लाठी के ऊपर इसी तरह जैसे इस लाठी के ऊपर बादाम के फूल निकले हुए हैं, उसके ऊपर वो फूल निकल आए रातों रात। इसीलिए मैंने ये पैगाम जो है उसको तैयार किया। खुदा मुझे बड़ी देर से कह रहा था कि तू क्यों ढीला हो रहा है, देख, चेक कर, इस बादाम के दरख्त में बहुत सारा राज छुपा है। और बादाम के दरख्त की कलियां निकल आई उस सूखी डाली में से। हालेलुया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं फिर खुदा ने कंफर्म किया कि मैंने हारून को अगर पास्टर ठहराया है, काहिन मुकर्रर किया है, तो वो मेरा चुना हुआ वैसल है, उसकी सुनो। एक वाक्या मैं और आपको बताता हूं। खुदा असे के जरिए से एक इख्तियार देता था, और ये इख्तियार दाऊद के पास भी था। हालेलुया। कैसे? मैं आपको कहानी दाऊद की बताता हूं। आप सबको पता है कि एक जाति जूलियत था जो फिलिस्तीन का था, फिलिस्ती था, और कहते हैं उसका कद 10 फुट का था। और दाऊद जो है वो भेड़ बकरियां चराने वाला था। जब पता चला कि फिलिस्तीन की और इस्राएल की जंग हो रही है, और उधर से एक पहलवान उठा है जिसका नाम जाति जूलियत है, और कोई उसके मुकाबले को नहीं आ रहा, तो दाऊद के बाप यसी ने उसको रोटियां देकर अपने भाइयों को देने के लिए भेजा, क्योंकि वो तीनों भाई फौजी थे, जंग में लड़ने वाले थे। और जब उन्होंने दाऊद ने आकर उनसे पूछा कि ये बंदा कौन है जो खुदा को और हम सब को बुरा भला कह रहा है, वो कह रहा था, इस्राएलियों बाहर निकलो, अगर तुम्हारा खुदा बड़ा है तो उसको मेरे सामने लेकर आओ, या अपने में से कोई एक मर्द लेके आओ। अगर कोई मेरा मुकाबला कर पाए तो मैं और हमारी सारी फौज आपके मुती हो जाएंगे, आपके गुलाम हो जाएंगे। और दाऊद दिलेर था। दाऊद अपने भाइयों को और बाकी लोगों को कहता है कि क्यों नहीं लड़ने के लिए जाते। कहता देखो, इतने बड़े आदमी के साथ कौन लड़े। कहता है मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। वो बज़िद हो जाता है और उसे बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह कौन था? साउल बादशाह था। साउल ने कहा कि तू अभी छोटा लड़का है, वो बहुत बड़ा है, तो उसका मुकाबला कैसे कर सकता है। वो कहता है बादशाह मत घबरा, मैं भेड़ों का चरवाहा हूं और मुझे अपनी भेड़ों की रखवाली करना आती है। इसीलिए वो लिखता है तेरी लाठी और तेरी सोटी से मुझे तसल्ली है। उसे पता था अपनी भेड़ों की रखवाली करना, और कहता है अगर खुदा मुझे ये बल दे सकता है कि मैं अपनी भेड़ों में से एक भी खोने नहीं देता, तो वो जिसने मुझे भेजा है वो इस जाति जूलियत को मार देगा और वो अपने लोगों को बचाएगा। खुदा अपनी भेड़ों की हिफाजत करेगा। उसके अंदर ये ईमान था।
साउल को वो कहता है, बादशाह मत घबरा, विश्वास कर, मैं इस पर फतह पा जाऊंगा, क्योंकि मैंने एक दफा शेर को मारा है जिसने मेरी भेड़ को चुराया था, एक दफा मैंने रीछ को मारा है जो मेरी भेड़ को चुराता था, मैं उसके मुंह से उसको निकाल कर बाहर ले आता था। साउल इंप्रेस हो जाता है, साउल तैयार हो जाता है और कहता है ठीक है तू लड़ेगा। और साउल उसे अपने कपड़े देता है। कपड़ों में क्या होता है, वो सीना बंद होता है, इसे आर्मर बोलते हैं, और उसे अपने वो सीना बंद देता है, अपनी तलवार देता है, ठीक है, और सारा लिबास देता है उसे। लेकिन जब दाऊद उस लिबास को पहनता है तो दाऊद से चला नहीं जाता, क्योंकि उसने कभी फौजी कपड़ों को ट्राई नहीं किया था। तो फिर जब उसे चला नहीं जाता तो वो कहता है, बादशाह ये तू अपने पास रख, क्योंकि मेरे पास है, मेरे पास एक चीज है। और हम इसको देखेंगे, आप अगर मेरे साथ इसको निकालते हैं, सैमुएल 17 बाब उसकी 38 आयत से 40 आयत, सैमुएल 17 बाब उसकी 38 से 40 आयत मैं पढ़ता हूं। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खौद हेलमेट उसके सर पर रखा और उसे जिरा भी पहनाई, और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सब को उतार दिया, और उसने क्या लिया, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर चरवाहे के थैले में लिए जो उसके पास था। हालेलुया। उसने क्या किया, अपनी लाठी उसने ली, और मेरे अजीजों वो लड़ने के लिए चला गया। और वो क्या कहता है कि तू तो बर्छी और नेजा लेकर आया है, लेकिन ऐ जाति जूलियत, मैं यहोवा के नाम से आया हूं। हालेलुया। वो अपनी लाठियों पर योद है वाव है लिख देते थे, और कहता है मैं यहोवा के नाम से आया हूं, और आज ही मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा करके ले जाऊंगा। और ऐसा ही उसने किया। खुदावन इस तरह से अपने लोगों को इख्तियार देता है, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इख्तियार उस सोटे के अंदर नहीं था, इख्तियार तलवार के अंदर नहीं होता, इख्तियार खुदा के कलाम के अंदर होता है, खुदा पर विश्वास करने से इख्तियार होता है। और ये चीजें, ये सब एक तस्वीरें थी किसकी, यस्सु की, जो असल नेचर है, जो असल नासरी है। इसीलिए उसका नाम नासरी रखा गया था कि वो असल शाख है। और इसको हम कैसे देखते हैं, कहां से पढ़ते हैं कि ये जो शाख जिसका जिक्र हम देखते हैं अहद के संदूक के अंदर क्या था, यही शाख थी। हालेलुया। अहद के संदूक के अंदर जो ताकत थी वो यही शाख थी, जो मेनोरा लगा हुआ था, जो लाइट बनाकर लगाई गई थी, उसकी डंडियां इसी शाख की बनाई हुई थी। हालेलुया। जिसने समंदर को 2 भाग कर दिया, जिसने चट्टान में से पानी निकाल दिया, वो यही इख्तियार था। वो जो बल्ली पर लटका, जब बल्ली को खड़ा किया गया, वो इख्तियार था जो खुदा ने उसे दिया था। और ये इख्तियार, सिर्फ ये जो चीजें थी ये एक तस्वीरें थी, और असल जो तस्वीर है वो यीशु मसीह है। असल इख्तियार यीशु है, और मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे है। आप मेरे साथ निकालिए यशाया
11 बाब उसकी पहली आयत पढ़िए। ਯੱਸੀ ਦੇ ਟੁੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗਰ ਨਿਕਲੇਗੀ हाँ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਹਿਣਾ फल देवेगा। हालेलुया, एक टहना फल देवेगा। ये टहना आपको नजर आ रहा है। कहता है यस्सी के तने में से एक कौंपल फूटेगी और उसकी जड़ों में से एक टहना निकलेगा, एक शाख पैदा होगी। और ये प्रोफेसी किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में है। यीशु किसके खानदान में से था? यस्सी के, दाऊद के खानदान में से था। और ये यीशु के बारे में है। मैं एक और हवाला आपको देता हूं। आप यिर्मयाह आगे चलकर फिर इसी के बारे में बताता है। आप निकालिए 23 बाब उसकी 5वीं आयत, यिर्मयाह 23 उसकी 5वीं और 6ठी आयत पढ़िए। ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ हाँ। ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਲਈ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸ਼ਾਖ ਖੜੀ ਕਰਾਂਗਾ। हाँ, किसके लिए खड़ा करूंगा? दाऊद के लिए एक क्या? धर्मी शाख, एक सादिक शाख पैदा करूंगा। आगे ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ हाँ। ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਸੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ। यहोवा साडा धर्म, खुदा हमारी सदाकत। और ये यीशु के बारे में पैगाम है। वो शाख आएगी और जब वो आएगा तो फिर इस्राएल आराम से बैठेगा। आज वो आराम से बैठ नहीं सकते। मैं फिर कहूंगा जकरिया 3 की 8 पढ़ते हैं। जकरिया 3 की 8 मैं उर्दू में पढ़ता हूं, फिर हम पंजाबी में भी इसको पढ़ेंगे। यशवा सरदार काहिन था और खुदा का कलाम उस पर आया और खुदा उसे क्या कहता है? ऐ यशवा सरदार काहिन सुन, तू और तेरे साथी जो तेरे सामने बैठे हैं वो सब सुनो। वो इस बात का ईमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूं। वो जाजक को कहता है खुदा का कलाम कि तू और तेरे साथ जितने भी प्रीस्ट यहां पर बैठे हैं, याद रख लो कि मैं अपने बंदे शाख को लाने वाला हूं। और यहां से तकरीबन 500 साल का फर्क था जब यीशु दुनिया में आने वाला था। कहता मैं नेत्सर को लाने वाला हूं। पढ़े जरा इसी आयत को। ਹੇ ਯੋਸ਼ੂਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੁਣੀ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਅਰਥਾਤ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। हाँ, मैं किन्नू लेके आवांगा? शाख नू। क्या है पंजाबी में क्या लफ्ज लिखा हुआ है? ਸਾਖ। साख। ठीक है, साख क्या है? शाख को मैं अब ले आने वाला हूं। और मत्ती 2 की 23 देखें। मत्ती 2 की 23 में लिखा है। और हम इसको देखते हैं कि जब हेरोदिस यीशु को मारना चाहता था तो खुदा ने यूसुफ को कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को लेकर मिस्र को चला जा। और फिर जब वो मर गया हेरोदिस तो फिर खुदावंद उसे कहता है वापिस आ जा। और जब यूसुफ वापिस आया तो उसने देखा कि उसका बेटा अरखलाउस अब उसकी जगह पर बादशाही कर रहा है। तो फिर वो वहां अब बैतलहम में जाने से डरा और कहां चला गया? पढ़े जरा ਮਤੀ 2 ਤੇ ਉਸਦੀ 23ਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾਸਰਤ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, जो वो नासरी कहावेगा। हालेलुया। खुदा के कलाम का एक एक लफ्ज सच्चाई उगलता है, बताता है। कहते जो नबियों की मार्फत कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा, वो नेत्सर कहलाएगा, वो पूरा हो जाए। इसीलिए वो नासरत में बसा, इसीलिए उसका नाम नासरी कहलाया। हालेलुया। वाह, हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वही नासरी जो था उसने अपनी जान सलीब पर हमारी खातर दे दी। वो सलीब पर चढ़ाया गया। जिस तरह बियाबान में
बल्ली के ऊपर, उस रॉड के ऊपर, उस डंडे के ऊपर सांप को चढ़ाया गया और जो सांप को देखता था वो शिफा पाता था। यीशु भी सारे जहान के गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया और खुदावंद उससे कहता है कि खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसको देखे, वो हमेशा का जीवन पाए। और आप ये देखते हैं उस सलीब के ऊपर, एक लकड़ी के ऊपर, एक बल्ली के ऊपर जो जिंदगी का इख्तियार रखने वाला है उसको चढ़ाया गया है। और ऊपर स्पेलिंग क्या लिखे हुए हैं, कोई पढ़ सकता है? INRI। पता है इसका मतलब क्या होता है? INRI का मतलब क्या होता है? E से क्या है? यूसुस यानी यीशु, और N से नाजेरेनुस, और R से रेक्स, और रेक्स का मतलब बादशाह होता है, और E से यूडेरियम। ये लतीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। और इसे ग्रीक जुबान में ईसूस और नाजेरेउस और वासिलेउस तोन यूदियोन, ये ग्रीक जुबान में है। और अब इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है? इब्रानी जुबान। इब्रानी जुबान में इस नाम का मतलब, इन लेटर का मतलब होश उड़ाने वाला है। और हम वो तस्वीर एक देखेंगे जिस पर वो क्लोजअप बना हुआ है, ये लिखा हुआ था। और इसको इब्रानी जुबान में हम बोलते हैं यशवा हा नसरीन इमलेक हा यहूदीम। मुझे उस ज्यादा अच्छे से नहीं बोलना आता, लेकिन इस तरह से लिखा हुआ था। और जिस तरह INR को अलहदा किया गया, अगर इसके पहले हरफों को अलहदा करें तो वो क्या बनता है? अगली तस्वीर देखेंगे, ये देखें। पहला हरफ बनता है योद, और दूसरा हरफ बनता है हे, और तीसरा हरफ बनता है योद, और चौथा हरफ बनता है हे। और ये क्या बनता है? यहोवा। योद है, वाव है, वाव। तो जब उन्होंने, यहूदियों ने देखा कि ये लिखा हुआ है, यहोवा लिखा हुआ है, इसका पूरा लफ्ज पढ़े तो लिखा है यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह, तो वो जल गए। और पिलातुस को जाकर कहते हैं कि ये ना लिख। लेकिन पिलातुस ने क्या कहा? अब जो लिख दिया सो लिख दिया। ये बात आसमान पर लिखी गई थी। वो सिर्फ अपने मुंह से कह रहा था, लेकिन अंदर से खुदा का कलाम बोल रहा था। हालेलुया। जो लिख दिया सो लिख दिया। खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है, जागता रहता है, वो सोता नहीं है। ये आज के पैगाम में से ये पत्तियां इस बात की गवाह हैं। ये खुदा का कलाम ये बताता है। अपनी आंखों को खोल के रखो, जागते रहो, सो ना जाओ। यीशु भी अपने शागिर्दों को कहता था, जागो और दुख में, मुसीबत में, आजमाइश में ना पड़ो। आज हमें भी इसी तरह जागने की जरूरत है मेरे अजीजों। आंखें खोलने से, स्टडी करने से, आप में से किसी को भी, मैं कह सकता हूं किसी को भी इस बात का पहले नहीं पता था कि वो सलीब पर जो टैग लगाया गया था, जो कुतबा लिखा हुआ था, उस पर लिखा क्या था? उस पर यहोवा लिखा हुआ था। जब खुदा ने मूसा को कहा कि तू मेरा नबी बनेगा, जा तू बनी इस्राएल को जाके बता कि मैं नबी हूं, तो उसने कहा कि खुदावंद मैं क्या बताऊं कि किसने मुझे भेजा है? तो उसने कहा कि मेरा नाम यहोवा है, जाके बता कि यहोवा ने तुझे भेजा है। और उसके ऊपर
कुंदा था, लिखा हुआ था उसकी छड़ी के ऊपर, योद है वाव है यहोवा। ये यहूदी ट्रेडिशन इस बात को मानती हैं, और आज हम देखते हैं यीशु की सलीब के ऊपर भी योद है वाव है, शॉर्ट नेम, जैसे इनरी लिखा हुआ है वैसे यहोवा लिखा हुआ था। हालेलुया। और मूसा की लाठी को पता है क्या, कौन सी लाठी कहते थे? यहोवा की लाठी। कभी सुना है आपने इस बात को? ये पैगाम के दौरान में ही खुदा ने मुझे ये आयतें 2 दफा यही लिखा हुआ है। किसकी लाठी? मूसा की लाठी नहीं, यहोवा की लाठी। और ये सलीब यहोवा की लाठी थी। हालेलुया। जिसके ऊपर योद है वाव है लिखा हुआ था। वाह, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए। और मेरे अजीजों, ये इख्तियार योद है वाव है का, मूसा ने क्या कहा? मैं किसके नाम से आता हूं? यहोवा के नाम से आता हूं। और खुदा आपको भी इस इख्तियार के साथ भेजता है, कौमों में जाओ और मुनादी करो, क्योंकि वक्त ये घड़ी बुरी है। सच में कह रहा हूं, अगर हमने तौबा ना की, अगर हमने अपनी आंखों को ना खोला, तो बहुत पछताना पड़ेगा। वहां पर लिखा है, वहां पर रोना और आंखों का, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। इसलिए आज आंखें खोलकर मैं सच कहता हूं, आप पड़ताल करें, चेक करें, स्टडी करें। इसी पैगाम को मैं YouTube पर डालूंगा और मैं इसके नोट्स भी जो मेरे पास हैं वो सारे उसके ऊपर डालूंगा, और आप तफसील के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ उसकी स्टडी करना। और मैं सच कहता हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी इस पेड़ की तरह जो विंटर होते ही उसने अपनी आंखें खोल ली थी। यह पैगाम देता है कि लोगों, मेरे लोगों, जागो, सोए ना रहो, आगे बढ़ो। और अपने दिलों को भी हम पत्थर ना बना लें कि खुदा का कलाम हम पर कोई असर ना करे। आज का पैगाम हमें ये पैगाम देता है, आज का टॉपिक हमें ये बताता है कि खुदा आपको बुला रहा है। खुदा आपको बुलाता है, नई शुरुआत के लिए बुलाता है। खुदा लोगों को बचाने के लिए आपको बुलाता है। जिस तरह उसने यिर्मयाह, जिस तरह उसने मूसा को बुलाया, खुदा आपको भी वही उसी तरह बुलाता है। और अगर वो कमजोर थे तो हम भी कमजोर हैं, लेकिन हमने अपनी कमजोरियों को नहीं देखना, खुदा के फजल को देखना है। और जो कुछ आपके पास है, खुदावंद को कहें, खुदावंद ये मेरे पास है, तू इसे इस्तेमाल कर। खुदावंद मुझे गाना आता है, मैं तेरे लिए गाऊंगा। मुझे बजाना आता है, मैं तेरे लिए बजाऊंगा। और सारों ने पास्टर ही नहीं बन जाना होता, कोई इंतजामिया भी होता है, कोई कंप्यूटर पे भी काम करता है, कोई अपने पैसे से भी खिदमत करता है, कोई दरवाजे पे भी खड़ा होता है। और दाऊद कहता है कि खुदावंद तेरे घर का दरबान होकर रहना मुझे महलों में रहने से अच्छा है। तो आज पास्टर खेलने की दौड़ लगी हुई है। क्या है ये? अपनी खिदमत को पहचाने मेरे अजीजों। जो कुछ भी आप खुदावंद के लिए कर सकते हैं वो करें, जो कुछ आपके पास है वो पेश करें। दूसरा पैगाम सुने। खुदा कहता है कि मैं अपने वादे को पूरा करने के लिए बेताब हूं, बेदार हूं, जागता रहता हूं अपने कलाम को पूरा करने के लिए। यीशु ने पता है सलीब पर क्या कहा था कि मैं प्यासा हूं। और क्यों उसने ये बात कही? लिखा है, जब उसने देखा कि सारी बातें जो मेरे हक में कही गई थी वो पूरी हो चुकी हैं, तो अपने मुंह से कहा मैं प्यासा हूं, ताकि जो नबियों की किताब में लिखा था वो पूरा हो कि जब मैंने पानी मांगा तो उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। तो खुदावंद जानबूझकर उस लफ्ज को कह रहा है ताकि कलाम पूरा हो। और खुदा का कलाम पूरा होगा, चाहे आप उसको माने ना माने, रद्द करें, उसको मजाक में लें, उसको जो मर्जी दिल पर पत्थर रखकर बैठे रहें,
खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा। जैसे ये विंटर में ही में अपनी आंखें खोल देता है, ये सर्दी से डरता नहीं है, खुदा ने इसे ठहराया है। चांद को खुदा ने अपना गवाह ठहराया है। खुदा का कलाम कहता है हर एक चीज अपना अपना काम कर रही है। और आज हम हैं कि आज हम अपनी सुस्ती से, काहली से बाहर नहीं आते। खुदा ने आपको चुना है, इख्तियार दिया है कि तुम सांपों को, बीमारियों को, बिच्छुओं को डांटो, वो निकल जाएंगे तुम्हारे कहने से। ये इख्तियार यीशु कहता है मैं तुम्हें देता हूं। तो फिर आज हम सुस्त क्यों हैं इतने? मेरे अजीजों, खुदा का कलाम पूरा होगा चाहे कुछ भी हो जाए। यिर्मयाह 1:12 में क्या लिखा? और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं, जागता रहता हूं, तैयार रहता हूं। और इसी तरह खुदावंद ने यशायाह 55:10 में कहता है, जिस तरह बारिश जब आसमान से बरस जाती है और जिस तरह से बर्फ आसमान से बरस जाती है और फिर ऊपर को उठाई नहीं जाती, उसी तरह मेरा कलाम भी जो मेरे मुंह से निकलता है वो पूरा होगा, वो इंजाम पाएगा। बल्कि जो कुछ मैंने ख्वाहिश की होगी वो मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगा, और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा है वो उस काम को करेगा। खुदा अपने वादों को पूरा करने के लिए तैयार है और वो करेगा। जो जो उसने आपकी जिंदगी के लिए वादे कर दिए हैं वो पूरे होंगे। खुदावंद ने एक दिन मुझे कहा था, फैसल मैं तुझे कौमों में इस्तेमाल करूंगा। उस वक्त मैं डिप्रेशन में था, और अगर मैंने यकीन ना किया होता तो शायद मैं डिप्रेशन में मर ही जाता। आज मैं जहन्नम की आग में कह रहा होता, खुदावंद तू एक मौका मुझे दे दे। लेकिन मैंने यकीन किया उस कलाम को, और आज यही है। आज हमारे दरमियान में ही 2-3 कौमें हैं, और जब मैं अथीना जाता हूं तो और ज्यादा कौमें, और जब ये पैगाम पहुंचता है तो कौमें देखती हैं। हालेलुया। खुदावंद आपकी जिंदगी में इन वादों को पूरा करेगा। सच माने, वो कहता है कोई हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया जाएगा वो नकारा हो जाएगा। खुदावंद कहता है अगर तू मेरी इबादत करेगा तो मैं तेरे रोटी और पानी को बरकत दूंगा, तेरे घर में किसी का अस्कात नहीं होगा, कभी मिसकैरेज नहीं होगा, खुदा तेरे आने और जाने में तुझे बरकत देगा। ये सच है, और आज जो खुदावंद में वफादार हैं वो बरकत को रिसीव करते हैं। खुदा अपने वादों को पूरा करता है और देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं, बल्कि वो तहम्मुल करता है कि हमारी तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। तीसरा पैगाम याद रखें, आप जागें, बी स्पिरिचुअली अवेक एंड रेडी। तैयार रहें, जागते रहें, बेदार रहें, खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार रहें। खुदा बता मैं क्या करूं, इस चीज के लिए तैयार रहें। जो भी आपकी खिदमत है उसको वफादारी से करें, लेजी होकर ना करें। और प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे चर्च में आए। 6 बजे का मतलब 7 बजे नहीं है। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करें, बेदार रहें, तैयार रहें। ये अपने वक्त पर फला है, फूला है। इस दरख्त से हमने सीखना है, और खुदा का कलाम भी देर नहीं करेगा। खुदावंद पहले पतरस 5:8 में लिखता है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालफ अबलीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। याद रखें, इसलिए अगर हम जागते नहीं रहेंगे तो वो फाड़ खाएगा। और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। चौथा पैगाम सुन लें आज के इस दरख्त का। खुदा जो है, गॉड वॉचेज ओवर हिज पीपल। खुदा अपने लोगों की निगहबानी करता है, रखवाली करता है। खुदा अपने लोगों की केयर करता है, उन्हें बचाता है। जबूर 121 निकालें उसकी 4थी आयत से। जबूर 121 4थी आयत।
دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب یعنی چاند رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے۔ ہم سب بولیں گے ہاللیلویا، اور پھر ڈرنا چھوڑ دیں۔ کیوں ڈرنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ خدا ہمارا محافظ ہے، خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ آج بڑے لوگ یہی ڈرتے رہتے ہیں کہ دنیا کیا کہے گی۔ اگر میں نے یہاں پہ آ کر یسوع کا گیت گا لیا تو دنیا کیا کہے گی۔ آج میں نے بپتسمہ لیا تو میرے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ یہی ڈرتے رہتے ہیں۔ اور خدا کے خادم بھی وہ کلام ہی نہیں سناتے، کہتے یار مینوں کوئی دہشت گردی نہ پہ جانے۔ ڈرنا نہیں، خدا کہتا ہے میں تیرا محافظ ہوں، میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کی رکھوالی کروں گا۔ یہ خداوند کا کلام کہتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھیے یہ بادام کا یہ درخت بڑا پیغام آپ کو دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بیدار رہ، جاگتا رہ میری طرح۔ وہ کہتا ہے مت گھبرا، خداوند تیری حفاظت کرے گا، اس کے عصا اور اس کی لاٹھی سے تجھے تسلی ملے گی۔ مت گھبرا، خدا کا کلام تیری حفاظت کرے گا۔ یہ ڈالی، یہ شکاڈ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھ یہودا کا ببر یسوع ہی صلیب پر تیرے لیے چڑھا ہے، اور وہی دوبارہ آئے گا اور وہ قوموں کا انصاف کرے گا، وہ تجھے وقت پر بلیس کرے گا۔ یہ نہ دیکھ کہ آج تیری زندگی میں پھل نہیں ہے، اپنی جڑوں کو دیکھ جو نیچے سے بڑھ رہی ہیں۔ دنیا کیا دیکھتی ہے؟ اوپر سے دیکھتی ہے، لیکن خدا اندر سے بھی دیکھ لیتا ہے۔ وہ آپ کی جڑوں سے بھی واقف ہے۔ آپ کی جڑیں جتنی گہری ہوں گی اتنا بڑا پھل لگے گا۔ ایک بیمبو ٹری کے بارے میں یاد رکھیے، چائنیز ٹری بھی اسے کہتے ہیں، چائنیز بمبو ٹری، اور اس کے بیج کو ڈالنے میں ڈال دیتے ہیں، اور جو مالی ہے اس کو پانی دیتا رہتا ہے، اور پتہ ہے کتنی دیر تک وہ اس کو پانی دیتا ہے؟ سوچے کتنی دیر تک دیتا ہوگا، اور وہ اگتا نہیں ہے، اور بڑی دیر کے بعد اگتا ہے۔ کتنے سال کے، کتنی دیر کے بعد؟ 3 سال بیلا نے بولا نہیں، 4 سے 5 سال بعد اس کا بیج کمپل نکالتا ہے، جس طرح انہوں نے نکالی ہوئی۔ کتنے؟ 4 سے 5 سال کے دوران میں آپ بیمبو ٹری، چائنیز بیمبو ٹری کے بارے میں پڑھیے گا ذرا، اور وہ 4-5 سال اس کو پانی دیتے رہتے ہیں، اور پھر وہ شاخ نکالتا ہے، اور پھر 3 ہفتوں کے دوران وہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ اس کی ہائٹ 90 فٹ تک بھی چلی جاتی ہے۔ یہ چائنیز بیمبو ٹری کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ تو مت سوچے سال ہو گیا میری زندگی سے کوئی فرق نہیں آیا، کوئی آسمان نہیں کھلیا، کچھ معجزے نہیں ہوئے۔ نہ سوچے اس بات کو، آپ کی جڑیں خدا نیچے مضبوط کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس طرح یہ چائنیز بیمبو ٹری 4-5 سال کے بعد اگتا ہے تو کچھ ہی ہفتوں میں وہ 90 فیٹ تک چلا جاتا ہے۔ خدا آپ کو اسی طرح تیار کر رہا ہے۔ تیار ہوتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں، رکے نہیں، اور خدا آپ کے قد کو اونچا کرے گا، خدا آپ کی عزت کو بڑھائے گا، خداوند آپ کو کلام میں آگے بڑھائے گا، خداوند آپ کو پھلوں میں آگے بڑھائے گا، اور خداوند آپ کے ذریعے بہت سارے کام کرے گا یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں۔ آمین۔ خداوند یہ باپا، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں،
आज के कलाम के लिए खुदावंद बाप, खुदावंद इस आलमंड ट्री के बारे में, इस शाख के बारे में, इस नेत्सर के बारे में जो तेरा नाम है, नासरी है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप। और बाप मैं दुआ करता हूं कि ये कलाम तेरे बच्चों के दिल में और मेरे दिल में भी लिखा जाए खुदावंद यहोवा पाक खुदा। खुदावंद को मैंने इसको स्टडी किया है, लेकिन खुदावंद तू मेरे दिल के अंदर लिख दे, ताकि खुदावंद मैं हमेशा तेरे कलाम को सुनाने के लिए तैयार रहूं, मैं मजबूत रहूं, मैं डरूं नहीं, बल्कि खुदावंद मैं बेदार होते हुए तेरे कलाम को फैलाता चला जाऊं। और खुदावंद तो अपने बच्चों के साथ होना, जो लोग सुन रहे हैं मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं खुदावंद तू उनको ईमान से भर दे, उनकी दिलों की सख्ती को तोड़ दे और उनकी आंखों को खोल दे, ताकि वो तेरे कलाम की स्टडी कर सके खुदावंद बाप। क्योंकि आज तेरा कलाम छुपा नहीं हुआ, बल्कि जो चाहे वो उसको मुफ्त पा सकता है। खुदावंद अपने बच्चों की आंखों को खोल, ताकि खुदावंद वो तेरे कलाम के गहरे भेदों को जान सके। और खुदावंद जिन्होंने जान लिया है वो उनके दिल की तख्ती पर लिखा जाए, और खुदावंद ये उगे और 100 गुना फल लेकर आए, और खुदावंद तेरे बच्चे प्रैक्टिकली इस कलाम को करें। खुदावंद मैं उन सब के लिए भी खुदावंद जो आज अपना जीवन आपको देना चाहते हैं, खुदावंद मैं उनके लिए तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूं, तू उन्हें कबूल कर ले। मेरे अजीजों, जो अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं वो मेरे पीछे इस दुआ को कर सकते हैं। खुदावंद मैं जान चुका हूं कि तू ही आने वाला मसीहा है, तो खुदा का बेटा यीशु है जो हमारे पापों के लिए इस धरती पर आया, और तूने खुदावंद बेगुनाह होते हुए भी सारे मेरे पापों को और सारे जहान के पापों को सलीब पर अपने ऊपर उठा लिया और मेरी खातिर अपनी जान दी। मेरे कोड़े तूने खाए, जो जान मेरी जानी थी वो तूने अपनी जान गंवाई और मुझे हमेशा की जिंदगी दी है। खुदा मैं विश्वास करता हूं कि तू ही मसीहा है, तू खुदा का बेटा यीशु है। और खुदावंद मेरा ईमान है कि तू मुर्दों में से तीसरे रोज जी उठा और आसमान पर चला गया, और अब जल्द हमारी निजात के लिए, हमें बचाने के लिए, बादशाही के लिए फिर आने वाला है। और खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। मैं अपना जीवन आपको देता हूं यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।